السلام علیکم۔ گھومتی چائے کا سلام سب کو، بہت خوش ماشاءاللہ روزے بھی گزر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے گزر رہے ہیں۔ اور آج آپ کے ساتھ میں نے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے، 2-3 بڑے اہم پوائنٹ ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ مانی خان کی پالیسی آئندہ کی کیا ہے، نون لیگ آئندہ کیا کرے کیا نہ کرے، زرداری کیا کر رہا ہے، یہ ساری باتیں ہیں جو آج میں کھل کے کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ پہلے تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ آج گھومتی چائے آپ کو کیا کھلا رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں گھومتی چائے، یہ تو ہو گئی گھومتی چائے ہیں، گھوم رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم کیا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ گھریلو پکوڑے، اور یہ پالک والے پکوڑے ہیں گھریلو پالک کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ گھریلو سموسے، اور یہ بھی پکوڑا، اور یہ سویٹ ہے جی، یہ چھوٹا کیک نہیں ہوتا وہ والا ہے، یہ چیزیں ہم کھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب آپ سے اب میں کرتا ہوں بڑی زبردست باتیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی، جو آج اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور وہ شوشہ یہ ہے کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ فروغ نسیم نے مجھے کہا تھا کہ یار کرو کرو کرو، بار بار کہا تھا، ہائے ہائے۔ اور فروغ نسیم نے کیا کہا تھا کہ جناب مجھے عمران خان نے بار بار کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نو نہیں چھڈنا۔ اور پھر فواد چودھری نے کیا تھا کہا ہے کہ جی فروغ نسیم جو ہے نا وہ بکواس کر رہا ہے۔ اور پھر فروغ نسیم نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی فواد چودھری بکواس کر رہا ہے۔ یہ ڈرامے ہیں سارے۔ آئندہ الیکشن کے لیے سب کی نظریں لگ گئی ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، سب کی پلاننگ آئندہ الیکشن پر ہو گئی ہے، چاہے زرداری ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، چاہے عمران خان ہو۔ ہم نے صرف ہوشیار کرنا ہے مسلم لیگ نون کو، جو بڑی بھولی بھالی بن کے پھر رہی ہے نا، ہم نے مسلم لیگ کو کہنا ہے۔ عمران خان نے اب یہ ذہن بٹھا لیا ہے، جو ہی گیا ہے نا تو وہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اور اگلے آنے والے کا جو ہے نا جو بھی ہوگا اس کی یہ تعریفیں کرے گا عمران خان، کیوں؟ اسے پتہ ہے نومبر میں یہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے میرا کیا لینا دینا، چلا گیا، چلا ختم۔ اور اس لیے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں عوام کی حمایت لینے کے لیے، اور اگلے کی تعریف کرے گا۔ اس کے بعد جو عدلیہ میں عطا بدیال صاحب ہیں، اس کی عمران خان صاحب مخالفت کر رہے ہیں، اور اب قاضی فائز عیسیٰ کی جو نا وہ کہتے ہیں جی میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور میں تو بڑا شریف ہوں، اور یہ ہے وہ ہے۔ اور سر جی یہ بہت ہی مکار ہے، خدا کی قسم عمران خان بہت مکار ہے۔ ایسا بگ یو ٹرن لیتا ہے بڑا سا کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے کر کیا دی ہے، ابھی تو کہہ رہا تھا دن ہے، ابھی فوراً ہی کہہ دیا رات ہے، یہ اس طرح کا۔ اب اس نے ساری پلاننگ یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے چیف جسٹس کو بھی میں ناراض نہ کروں، اور اگلے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی نہ نظر ہوں، کیونکہ یہ سہاروں کے ذریعے آنا چاہتا ہے۔ لیکن نہیں، ہر دفعہ مکاری نہیں چلتی۔ کہتے ہیں آپ تھوڑے وقت کے لیے کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، بڑے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر گواہیاں دیں گے، میں نے متعدد ویڈیو بنائی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر گواہیاں دیں گے، وہی ہو رہا ہے۔ فروغ نسیم نے کہا ہے جی مجھے عمران نے کہا ہے، عمران کہتا ہے جی مجھے فروغ نسیم نے کہا ہے، اور فواد چودھری، یہ ساری چیزیں باہر نکل رہی ہیں نا، ان کے اپنے اندر سے نکل رہی ہیں۔ ابھی تو جناب بڑے بڑے گواہ نکلیں گے، وہ مجھے کہنے لگے یار جی رانا وہ غلام سرور خان نے بھی، گورنر نے بیان دے دیا، عمران خان کے راز کھول دیے، علیم خان نے بھی کھول دیے۔ کہتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن مراد شہید راز کھولے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے، دیکھ لینا۔
ये मुराद सईद भी देगा। भाई जब इमरान किसी की दीद लिहाज नहीं करता तो वो सोचते नहीं है बाकी। आज बाकी सोच रहे होंगे कि इमरान खान ने सीधा इल्ज़ाम फरोग नसीम पे डाल दिया है कि काजी फाइज ईसा का जनाब वो मुझे उसने कहा था, सीधा इल्ज़ाम डाल दिया। वो कौन होता है भाई? जब इमरान खान तुम वजीर आज़म हो, उधर सदर आरिफ अलवी बैठा है, ये सारी तुम्हारे नेगेटिव जहन है, तुम्हारे इमरान खान तुम्हारा ही जहन है, तुम किसी को वो ब्लेम नहीं कर सकते। अभी तो देखना इमरान खान और कितने लोगों को नंगा करेगा और वो इमरान को करेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान जो है ना, ये सिर्फ ये बहाने कर रहा है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। और फरोग नसीम ने उनको आईना दिखाया है, उसने उनको दिखाया है। आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब आए जी अगली सियासत। अगली सियासत क्या हो रही है? देखें, ये तो पक्की बात है कि जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून, इन्होंने आपस में लड़ के आगे अगली हुकूमत बनानी है। अगली हुकूमत में ये प्यार मोहब्बत नहीं होगा, ना न्याजी इनका कम्पिटिटिव होगा। न्याजी कोई मुकाबले में नहीं होगा, वो उसका मुकाबला जस्टिस पार्टी से होगा, बल्कि वो भी नहीं होगा। क्यों भाई? वो तो पार्टी खत्म होने जा रही है। वो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तो पार्टी खत्म हुई है। इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है वो फॉरेन फंडिंग वाले केस में 101% खत्म हो जाएगी और उसकी जगह जस्टिस पार्टी आएगी, जो मैं आपको कभी मजाक में कह रहा हूँ, कभी सीरियस तरीके से कह रहा हूँ। ये ज़हन में रख लो, उसकी जगह पाकिस्तान जस्टिस पार्टी पीजेपी हमारी पार्टी आएगी, आपकी पार्टी आएगी, कानूनी टीवी की पार्टी आएगी। अच्छा जी, अब मौलाना ये आसिफ अली जरदारी साहब चाह रहे हैं कि वो सारे ओहदे, आइनी ओहदे वो ले लें, गवर्नर का ओहदा भी ले लें, सदर पाकिस्तान का भी ले लें, वजारत खारजा का भी ले लें, और जी की पोस्टें ले लें, और जो डिलीवरी वाली पोस्टें हैं जैसे खुराक और आटा की, ये वो नून लीग के हवाले करें ताकि महंगाई हो तो बदनामी उनकी हो ज़्यादा। ठीक है, ये प्लानिंग चल रही है। जरदारी साहब ने 100%, उनका हक भी है, उन्होंने सोच लिया है कि मैंने अगला वजीर आज़म बिलावल भुट्टो को बनाना ही बनाना है। ठीक है, और अगर वो सदर पाकिस्तान खुद बनते हैं जैसे उनके ज़हन में है, तो फिर उनका ये होगा कि हर चीज़, स्पीकर कौमी असम्बली का उनका पहले बन गया है, पंजाब का भी वही बनाना चाहते हैं। उन्होंने सब ने, मैं आपको ये बता दूं, सब ने, इमरान खान ने भी, चले उनको फिलहाल शामिल कर लेते हैं, वैसे ये होगा नहीं गेम में, इसकी दूसरी शेप कोई बदल सकती है, ये नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये इन सब का मरकज जो है ना पंजाब बनेगा। पंजाब के टोटे करेंगे, टोटे के मैं किधर से पंजाब से ले लूं जी। ठीक है, आसिफ अली जरदारी ने टारगेट बनाया हुआ है जनूबी पंजाब को, जहां से वो 25-30 सीटें जो है ना वो निकालना चाहता है। ठीक है, बाकी ये गुजरांवाला, गुजरात और ये जीटी रोड, ये नून लीग वाले कहते हैं हमारी पक्की है। ठीक है, अब आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कह दिया कि ये हुकूमत जो है जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए, इलेक्शन इस्लाहत करवाए और ये होंगे, बल्कि उससे भी जल्दी। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो थोड़ा सा कह दिया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब सरप्राइज भी दे सकते हैं। वो केपीके में सरप्राइज दे सकते हैं, बलूचिस्तान में दे सकते हैं, सिंध में भी उन्होंने बड़ा काम किया है, वहाँ भी दे सकते हैं, पंजाब में भी हिस्सा ले सकते हैं। मौलाना साहब अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जो उन्होंने जलसे जुलूस, जो उन्होंने धरने लॉन्ग मार्च दिए हैं ना, उनका उनको फायदा होगा लाजमी। अब मैं तो रो पीट रहा हूँ नून लीग के लिए कि नून लीगियो, खुदा के लिए कोई जलसा कर दो, मुझसे पैसे ले लो, मुनसिफान से ले लो पैसे, कोई जलसा बड़ा कर दो। आपको जलसों की जरूरत है। और वो जलसे करे मरियम नवाज। ठीक है, आप दोनों जगह हुकूमत भी आपकी आ गई है, तो हुकूमत अगर फेल होती है ना, सबसे ज्यादा बदनामी नून लीग के हिस्से में आएगी। ये भी ज़हन में रख लेना, इस वक्त फुल खिचड़ी तैयार है।
हर कोई अपनी अपनी गेम बना रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब सरप्राइज दे सकते हैं अगले 5 साल के लिए। इमरान खान को मैं माइनस कर रहा हूँ बीच में से, ठीक है, इसको सीटें नहीं मिलेंगी। और जरदारी साहब पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज भी उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से अलहदा मुलाकात हुई है और वो सदर के ओहदे के लिए ये दोनों उम्मीदवार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं और उनका हक भी बनता है। और जरदारी साहब कहते हैं मैं भी एक दफ़ा जानते जानते ना सदारती झूठा ले लवा तो ये खिचड़ी पक रही है। नून लीग वालों होश के नाखुन लो और तकड़े हो जाओ और ये अपने अटार्नी जनरल और ये वो सारी ये सीटें इनके पीछे ना पड़ो, वजारतों के पीछे ना पकड़ो। आइंदा के लिए सोचो। आप आए ही इलेक्शन करवाने के लिए, पता है आपको। इलेक्शन की इस्लाहत करो, इलेक्शन कमीशन को कहो कि जनाब अली ये आप करें, इसके लिए क्या कहते हैं हमें टाइम दे इलेक्शन का, आप कब करवा सकते हैं। पहले उन्होंने अक्टूबर में बयान दिया था, अक्टूबर नवंबर। तो मेरा ज़ाती अंदाज़ा है दिसंबर या जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए नून लीग को चाहिए कि ये जलसे करे, खामखा जलसे करे, हर जगह जलसे करे। ये इनके लिए बहुत ज़रूरी पैगाम में छोड़ रहा हूँ कि जलसे जलसे जलसे। सब ने जलसे किए हैं, पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्त जलसे किए हैं, पूरे सिंध में भी किए हैं, पंजाब में भी किए हैं, KPK में भी किए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो जलसों का कमाल कर दिया है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं। लेकिन सबसे जो नहीं किए वो नून लीग ने नहीं किए। पता नहीं यार गरीब हो गई है या क्या हुआ है। तो जनाब ये हमारा मशवरा है कि जलसे करो और आवाम में आओ, ठीक है। और इमरान खान इंशाल्लाह अपनी नेगेटिव सोच की वजह से दिन ब दिन सुकड़ता जाएगा। और आवाम को ये बताओ कि मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। मरियम नवाज साहबा आपको कह रहा हूँ, ये आवाम को बताओ। ये फिर वो जो है ना हमला जैसे वो करता है ना चूहा, तो उसकी दुम बिल्ली के जो है ना वो पंजे में आ गई, तो बाद में बिल्ली कहने लगी चूहा भाई बाहर आओ, तेरी मैं दुम जो है ना जोड़ दे दोबारा। उसने कहा ना बख्शो भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। ये फिर आने की कोशिश करेगा इमरान खान। ये फिर प्लानिंग कर रहा है, मेल मुलाकातें ये वो सारा अंदर खाते भी सारा कुछ कर रहे हैं। ये आसानी से ये कीड़ा मरने वाला नहीं है, लेकिन ये अपने आप ही मर जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि इसको जो DGISPR ने कह दिया है ना कोई खाती साजिश है, ना कोई एब्सोल्यूट नाट है, तेरी सब फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। तो लेकिन नून लीग वालों तकड़े हो जाओ, अगले इलेक्शन की प्लानिंग करो और अपना सुबह हलफ इंशाल्लाह कभी ना ले रही है। हम सब के लिए दुआ गो है इंशाल्लाह ताला। जो न्याजी के लोग हैं ना, वो मुझे लग रहा है फवाद चौधरी, बाबर रवान एंड कंपनी ये सारे पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, मुझे लग रहा है, ठीक है। और जो कुछ जनूबी पंजाब के ये वो हैं वो भी उसमें चले जाएंगे और कुछ जो बचे हैं वो नून लीग में शामिल हो जाएंगे। तो रह जाएगा शीदा टल्ली ते मानी मरासी मानी खान ए रह जाएंगे, सॉरी मानी खान ए रह जाएंगे। ते ए 2 छड़े छांड रह जाएंगे ते बाकी जड़ा ना सारे इधर उधर हो जाएंगे। ते नून लीग जड़ा ना इंशाल्लाह ताला नून लीग की हुकूमत बननी चाहिए। हुन भी देखो ना इस मरतबे 18 में भी नून लीग जीती है, पंजाब में भी मरकज में भी, दोनों जगह, ठीक है। तो कोशिश सबने करनी है। जरदारी अगर बिलावल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हक है। हम तनकीद नहीं कर रहे, हम अपनी मुशावरत कर रहे हैं, तनकीद नहीं कर रहे। मौलाना फजल रहमान अगर वजीर आजम बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनका हक है, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और नून लीग में अवाम इसके दिलों में रहती है, इसलिए नून लीग अवाम के पास जाओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें।